Assalamu alaikum students. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Take out your English literature textbook and place in front of you. Come at page number 65. There is a lesson, My Big Brother. So I am going to read for you. Listen to me carefully. My big brother was 5 years older than me, but only 3 grades ahead. He'd begun his studies at the same age I had. But he didn't like the idea of moving hastily in an important matter like education. He wanted to lay a fine foundation for that great edifice. So he took 2 years to do 1 year's work. Sometimes he even took 3. If the foundations weren't well made, how could the edifice endure? I was 9, he was 14. He had full right by seniority to supervise and instruct me. And I was expected to accept every order of his as law. By nature, he was studious. He was always sitting with a book open and perhaps to rest his brain. He would sometimes draw pictures of birds and cats in the margin. Now turn at page number 26. Turn at page number 66 of his notebook. Occasionally he would write a name, a word or a sentence 10 or 20 times. He might copy a couplet several times in beautiful letters or create new words which made no rhyme or reason. He was in the 9th grade, I was in the 6th. To understand his creation was beyond my powers. I wasn't really very keen about studying. To pick up a book and sit with it for an hour was a tremendous effort. As soon as I found a chance, I'd leave the hostel and play marbles or fly paper kites, or sometimes just meet a chum down. But as soon as I came back into the room and saw my brother's scowling face, I was petrified. His first question would be, "Where were you?" My silence was acknowledgement of guilt, and my brother's only remedy this was to greet me with indignant words. "If you study English this way, you will be studying your whole life. Studying English is no laughing matter that anyone who wants to can learn. You have got to wear out your eyes morning and night and use every ounce of energy. And I ask you, how much of a blockhead are you that you can't learn a lesson from looking at me? You have seen how much I grinned, no matter how many shows and carnivals there may be. Have you ever seen me going to watch them? Every day there are cricket and hockey matches, but I don't go near them. I keep on studying all the time, and even so takes me 2 years or even 3 for 1 grade. So now students, come at page number 67. How do you expect to pass when you waste your time playing? If you waste your time, it would be better if you just went home and played cricket to your heart's content. Why waste our dad's hard-earned money? Hearing a dressing down like this, I'd start to cry. What could I answer? My brother was an expert in the art of giving advice. He'd say such sarcastic words that my spirits would collapse. In despair for a little while, I'd think, why don't I run away from school and go back home? But after an hour or two, the cloud of despair would dissipate, and I resolved to study with all my might. I drew up a schedule on the spot in my timetable. The heading of play was entirely absent. Get up at the crack of dawn, wash hands and face at 6, eat a snack, sit down and study from 6 to 8, English. 8 to 9 arithmetic, 9 to 9:30 history, then mealtime, and afterwards off to school. A half hour's rest at 3:30 when I got back from school.
geography from 4 to 5, grammar from 5 to 6, then a half hour's walk in front of the hostel. 6:30 to 7 English composition, then super. Translation from 8 to 9, science from 9 to 10, from 10 to 11 miscellaneous, then to bed. But it's one thing to draw up a schedule, and other to follow it. It began to be neglected from the very first day. The inviting green expanse of the playground, the balmy winds, the exciting stratagems of prisoners' base would. Now students, turn at page number 68. All draw me mysteriously and irresistibly. As soon as I was there, I forgot everything. The life-destroying schedule, the books that strained your eyes, and then my big brother would have an occasion for sermons and scoldings. The early exams came round, my brother failed, I passed and was first in my class. Only 2 years difference was left between him and me. It occurred to me to taunt him, look at me. I went playing and having a good time, and I am at the head of the class. But he was so sad and depressed that I felt genuinely sorry for him, but now I could be a little proud of myself, and indeed my ego expanded. My brother's sway over me was over. I began to take part freely in the games. My spirits were running high. He guessed it, and one day when I'd spent the whole morning playing cricket, he said, "I see you have passed and you are first in your class. And you've got stuck up about it. But my dear brother, even great men live to regret their pride, and who are you compared to them? A man can commit any sin he wants." Now come at page number 69. But he'd better not be proud, nor give himself airs. You have just been promoted one grade and your head's turned by it. Understand this, you didn't pass through your own efforts, but just stumbled on it by luck. Don't assume that because I failed I am stupid and you are smart. When you reach my class, you'll have to bite into algebra and geometry and study English history. It's not easy to memorize these kings' names. There were 8 Henrys. Do you think it's easy to remember all the things that happened in each Henry's time? If you write Henry the 8th instead of Henry the 7th, you get a 0. There were dozens of James, dozens of Williams, and scores of Charles. You get dizzy with them. Those poor fellows didn't have names enough to go around. If anybody had asked me, I could have reeled off thousands of names. And as for geometry, well, God help you. If you write ACB instead of ABC, your whole answer is marked wrong. Nobody ever asks those hard-hearted examiners what is the difference, after all, between ABC and ACB, or why they waste their time torturing their students with it. Does it make any difference if you eat lentils, boiled rice, and bread, or boiled rice, lentils, and bread? But what do those examiners care? They expect us to learn it word for word. And in the long run, what's the point of learning all this nonsense? If you bring this perpendicular line down on that line, it will be twice the baseline. I ask you, what's the point of that? If it isn't twice as long, it's 4 times as long or half as long. What the devil do I care? But you have got to pass, so you have got to memorize all this garbage. When you get into my class, you will find out what's what. Just because you got a first division, this time you are. Turn at page number 70. All puffed up, so pay attention to what I say. What if I failed? I am still older than you. I have more experience of world. It was almost time off for school, otherwise I don't know when this medley of sermons would have ended. Then it was the early exams again. Once more I passed and my brother failed. I hadn't done much work, but my brother had just about killed himself with work.
He'd gone pale. I felt sorry for him. When he heard the results, he down and cried, and so did I. My pleasure in passing was cut by half. There was only one grade left between my brother and me. The thought crossed my mind that if he failed just more, I'd be at the same level as him. And then what grow would he have for lecturing me? But I violently rejected unworthy idea. Now my brother had become much gentler towards me. Several times when he found occasion to scold me, did it without losing his temper. Perhaps he himself was beginning to understand that he no longer had the right to tell me off. My independence grew. I began to take unfair advantage of his toleration. I found a new pleasure in flying kites and spent all my time at the sport. Still, I minded my manner with my brother and concealed my kite flying from him. One day, far from the hostel, I was running along like, come at page number 71. Mad, trying to grab hold of a kite. My eyes were on the heavens and that high-flying traveler in the skies. A whole army of boys came racing out to welcome it. Nobody was aware who was in front or at the back of him. It was as though every one of them was flying along with that kite. Suddenly I collided with my brother, who was probably returning from the market. He grabbed my hand and said angrily, "Aren't you ashamed to be running with these ragamuffins after 5 rupee kite? Have you forgotten that you are not in a low grade anymore? I'm sorry to see you have so little sense. You are smart, but what use is it if it destroys your self-respect? You must have assumed I am just one grade behind my brother, so now he doesn't have any right to say anything to me. But you are mistaken. I am 5 years older than you, and that difference between us cannot be removed. The experience I have of life you can never catch up with. Even if you get an MA and a PhD, understanding doesn't come from reading books. Our mother never passed any grade, and dad probably never went beyond the 5th. But even if we studied the wisdom of the whole world, mother and father would always have the right to explain to us and to correct us, not just because they are our parents, but because they'll always have more experience of the world. Maybe they don't know what kind of government they've got in America or how many constellations there are, but there are 1,000 things they know more about than you or me. So brother, don't be so proud of having almost caught up with me and being independent now. I'll see that you don't go off the track. If you don't mind, then showing me, turn at page number 72, students. His fist. I can use this too. I know you don't like hearing this. I was thoroughly ashamed by this new approach of I had truly come to know my own insignificance, and a respect for my brother was born in my heart. With tears my eyes, I said, no, what you say is completely true and you have the right to say it. My brother embraced me and said, I don't forbid to fly kites. I'd like to too, but what can I do? If I go off my track myself, then how can I watch out for you? That's my responsibility. Just then a kite that had been cut loose passed over with its string dangling down. A crowd of boys were chasing after it. My brother is very tall. Leaping up, he caught hold of a string and ran at top speed towards the hostel, and I ran close behind him. Premchand, abridged from the translation by David Robin. Now students, I am going to explain the chapter, so listen to me carefully again. So students, यहाँ पर जो स्टोरी है वो 2 ब्रदर्स की है, ठीक है, और उनका डिफरेंस उन दोनों में बताया गया है कि दोनों भाई जो हैं कितने डिफरेंट हैं एक दूसरे से. इसमें जो स्टोरी नरेट कर रहा है वो छोटा भाई कर रहा है, ठीक है.
वो यंगर ब्रदर कर रहा है, वो अपना पर्सपेक्टिव शो कर रहा है, प्लस वो अपने ब्रदर के बारे में भी बता रहा है, अपने बड़े भाई के बारे में। अच्छा जी, उसका जो बड़ा भाई है वो उससे 3 ग्रेड्स आगे है, ठीक है, यानी कि उससे 3 क्लासेस वो आगे है, प्लस ये, लेकिन एजेस में दोनों की फर्क है, ठीक है। अब यहाँ पर वो 9th में है, यानी कि वो जो है छोटा भाई वो 9 इयर्स ओल्ड है और बड़ा भाई जो 14 इयर्स का है। बड़े भाई को बहुत ज्यादा स्टडियस दिखाया है, बहुत यानी कि पढ़ने वाला दिखाया है, वो हमेशा अपनी किताबें लेकर बैठा रहता है, पढ़ता रहता है। और कभी वो अपने आप को अगर माइंड को फ्रेश करना चाहता है तो वो क्या करते हैं, वो अपनी बुक का जो मार्जिन होता है उसमें वो ड्राइंग करना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे किसी बर्ड की पिक्चर बना ली, किसी कैट का स्केच बना लिया, या समटाइम्स वो कुछ ऐसी पोम्स वगैरह लिख लेते हैं जिसका ना ही कोई राइम होता है ना ही कोई रीजन होता है, लेकिन वो न्यू वर्ड्स जो है उसमें डिस्कवर कर रहे होते हैं। सो क्या होता है कि छोटा भाई जो है वो ज्यादा स्टडियस नहीं होता है। दोनों भाई जो हैं वो उनकी हॉस्टल में ही दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक ही हॉस्टल में जाते हैं दोनों। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि छोटा भाई जो है वो इतना ज्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता, स्टडी में इंटरेस्ट नहीं लेता है, लेकिन बड़ा भाई जो होता है वो बहुत ज्यादा, जैसे कि हमने बताया उनके बारे में कि बहुत ज्यादा स्टडियस होते हैं। अच्छा, छोटे भाई की क्या एक्टिविटी होती है? उनकी एक्टिविटी होती है कि उनको मार्बल से खेलने का बड़ा शौक होता है, मार्बल से खेलते हैं, फ्लाई पेपर काइट्स की जो फ्लाई उसको उड़ाते हैं, ठीक है। लेकिन बड़ा भाई जो होता है वो अपना छोटे भाई को समझाने के लिए उनको कभी कभी डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, और वो उनकी बेहतरी के लिए समझा रहे होते हैं। तो समटाइम्स जैसे कि वो घर में मौजूद नहीं होते तो उनके जो भाई होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ थे, तो खामोश रहकर अपना गिल्ट जो होता है वो उसको छुपा रहे होते हैं। तो फिर उनके भाई उनको एक लेक्चर देते हैं इंग्लिश के बारे में कि आप क्या समझते हो कि इंग्लिश क्या बहुत ईजी है जिसे आप मतलब इजीली पढ़ सकते हो? नहीं, उसके लिए आपको अपना दिन रात एक करके अपनी एनर्जी उसके अंदर पूरी डालकर आप इंग्लिश तभी पढ़ सकते हो, तभी सीख सकते हो। सो इधर उन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, ठीक है, कि आपको क्या लगता है, क्या मुझे क्रिकेट और हॉकी खेलने का शौक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उन सब के पास नहीं, उन सब को नहीं खेलता हूँ जस्ट बिकॉज कि मैं अपना वो टाइम जो है वो पढ़ाई में यूटिलाइज करता हूँ, ठीक है। हालांकि जो भाई होता है उसको सेमिनार्स में और ये जो इस तरीके से होते हैं कार्निवल्स वगैरह वो देखने का बड़ा शौक होता है, लेकिन वो इन सब चीजों को इग्नोर करके साइड पर रखकर वो अपनी स्टडी पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो तभी उनको एक क्लास को पास करने के लिए कभी 2 साल लग जाते हैं तो कभी 3 साल लग जाते हैं, ठीक है। ये उनका छोटे भाई का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो इतना पढ़ते हैं लेकिन फिर भी वो एक क्लास में कभी कभी वो 2 साल और कभी कभी 3 साल भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो वो यही कहता है कि आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि अगर मैं अपना टाइम इन सब चीजों में लगा दूंगा तो फिर मैं पढ़ूंगा कैसे? तो यकीनन आपको चाहिए कि हमारे जो फादर जो हैं वो इतनी मेहनत से जो कमा रहे हैं पैसा हमारी स्टडी के लिए, आप उस पर थोड़ा सा रहम करो और अपनी पढ़ाई पर ज्यादा तवज्जो दो, ठीक है। तो जो छोटा भाई होता है वो उनका ये सारी एडवाइस सुनकर वो रोना शुरू कर देता है कि उसके भाई ने जितनी भी एडवाइस दी वो नो डाउट बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। तो वो अपना एक शेड्यूल बनाते हैं, अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं जिसमें से वो जो स्पोर्ट्स या जो उनका एक्टिविटी का जो एक राउंड होता है, जो टाइम होता था पूरे डे का, उसको वो ऐड नहीं करते हैं अपने टाइम टेबल में, बल्कि वो अपने टाइम टेबल को जिस तरह बनाते हैं कि इतने बजे मैंने उठना है, लंच करना है, डिनर करना है, ब्रेकफास्ट करने हैं और ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी स्टडी को देना है। जैसे कि यहाँ पर एक पैराग्राफ में उन्होंने टाइम ड्यूरेशन अपना हर सब्जेक्ट के लिए कर दिया है यूटिलाइज के इतने टाइम पर मैंने ये पढ़ना है, ज्योग्राफी 4 to 5 करना है, ग्रामर करना है, फिर थोड़ा सा वॉक कर लेनी है, फिर इंग्लिश कंपोजिशन पर टाइम देना है, फिर डिनर करना है, फिर ट्रांसलेशन पर टाइम देना है, फिर साइंस वगैरह, इन सब्जेक्ट वाइज अपना टाइम टेबल एक बना लेते हैं। अच्छा, टाइम टेबल तो बना लिए, एक चीज तो ड्रॉ कर ली है उन्होंने अपने माइंड में, लेकिन सेकंड थिंग होती है उसको फॉलो करना। लेकिन वो फॉलो, छोटा भाई जो इसको फॉलो नहीं करता है, उसको नेग्लेक्ट कर देता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। फिर क्या होता है कि उनका जो अगेंस्ट है वो अपने वही खेलने कूदने जो उनकी एक्टिविटीज होती हैं उसमें वो दोबारा से एंगेज हो जाते हैं, दोबारा खेलने कूदने में वो अपना टाइम जो है अपना जाया करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये होता है कि उनके एग्जाम्स जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, फाइनल एग्जाम्स,
जिसमें बड़ा भाई जो है फेल हो जाता है और छोटा भाई जो है वो ना कि सिर्फ पास होता है बल्कि वो अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक पर आते हैं। अब जो दोनों भाइयों के दरमियान जो 3 इयर्स का क्लास डिफरेंस था अब वो 2 इयर्स का बन जाता है। ठीक है, सो अब वो यही कहते हैं कि अपने भाई को दिल में से ये कहते हैं कि देखो मैं तो खेला कूदा भी और मैं अपनी क्लास में फर्स्ट भी आ गया और आप मतलब मेरा जो बड़ा भाई है उसने सारा टाइम अपनी स्टडी को ही दिया, उसने ना कोई गेम खेला ना कुछ किया, फिर भी वो अपनी क्लास में फेल हो गए। सो क्या होता है कि वो दोबारा से अपने आप को उन एक्टिविटीज में एंगेज कर लेते हैं। तो फिर वो ये कहते हैं उनके बड़ा भाई ये कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि जब से तुम अपनी क्लास में फर्स्ट आए हो तो तुम अपने आप को थोड़ा सा पढ़ाई से आपने अपने आप को बहुत दूर कर लिया है। तो वो कहते तो उनको समझाते हैं कि आपको दोबारा से पढ़ना चाहिए। ठीक है, प्लस ये कि आप जो भी पास हुए हो, जब भी आप फर्स्ट आए अपनी क्लास में, वो सिर्फ इसलिए आए हो कि आपकी लक ने आपका साथ दिया था, अदरवाइज आपने मेहनत इतनी नहीं की थी। सो वो कहता है अब आप ये मत समझो कि मैं फेल हुआ हूं तो मैं बेवकूफ हो गया हूं, मैं स्मार्ट नहीं हूं, तो इसलिए मैं अब तुम्हें समझा रहा हूं। तो उसे समझाते हैं कि जब तुम मेरी क्लास को पहुंचोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री और इंग्लिश हिस्ट्री कितने टफ सब्जेक्ट हैं। यानी कि इंग्लिश में कितने कितने एक ही नाम के कितने करेक्टर्स होते हैं, जैसे कि उन्होंने हेनरी और विलियम, जेम्स और चार्ल्स की एग्जाम्पल दी है कि अगर तुम हेनरी 7-8 की जगह 7 लिख दोगे तो तुम्हारा पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरीके से वो ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं कि अगर तुम ABC लिख दोगे ACB के बजाय तो यकीनन तुम्हारा आंसर बिल्कुल 0 हो जाएगा और तुम मार्क्स नहीं गेट कर सकते हो। तो इसी वजह से ये सब चीजें जो होती हैं बहुत मुश्किल होता है इनको मेमोराइज करना। तो वो अपने भाई से को यही समझाते हैं, हालांकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि पहले तुम बॉइल्ड राइस खा लो या लेंटिल्स खा लो, ब्रेड खा लो या कुछ भी, इन तीनों में से पहले कुछ भी खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे जो एग्जामिनर्स हैं, हमारे जो चेकर्स हैं, उनको इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि जो हमने लिखवाया है वर्ड टू वर्ड आपने अपने एग्जाम कॉपी में लिखना है। सो ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से मैं जो अपनी क्लास में पीछे रह जाता हूँ। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं जब तुम मेरी क्लास में पहुंचोगे तब तुम्हें पता चलेगा, अगर तुम उस टाइम फर्स्ट डिवीजन ले लेते हो सो दैट्स गुड फॉर यू। लेकिन अब ये मत समझना कि तुम मेरी क्लास तक अगर पहुंच भी जाते हो तो तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है मुझसे ज्यादा बड़ा हो जाता है। नहीं, ये याद रखना कि तुम क्लास में तो आगे आ रहे हो लेकिन हमारा जो एज डिफरेंस है वो बिल्कुल भी कम, वो वैसी का वैसी ही रहेगा। अच्छा जी, फिर क्या होता है उनके स्कूल का टाइम हो जाता है तो उनका जो बड़े भाई की जो एडवाइसेस होती हैं या सो कॉल्ड उनके छोटे भाई की नजर में जो उनका लेक्चर होता है वो खत्म हो जाता है। इस तरह एक और साल गुजर जाता है और वो अगेन पास हो जाते हैं, अगेन फर्स्ट पोजीशन ले लेता है छोटा वाला ब्रदर यानी कि यंगर ब्रदर, और एल्डर ब्रदर जो होता है वो अगेन फेल हो जाता है। हालांकि नो डाउट उसने मेहनत बहुत की होती है, बहुत काम किया होता है, बट उनका सिलेबस काफी टफ होता है जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है कि अब दोनों भाइयों में सिर्फ एक ग्रेड का फर्क रह जाता है। तो छोटा भाई यही सोचता है कि अगर मैं एक ग्रेड पर आ गया यानी कि हम सेम लेवल पर हो जाएंगे और फिर यकीनन फिर ये मुझे कोई भी लेक्चर नहीं देंगे मेरे बड़े भाई जो हैं। हालांकि ये बहुत अजीब सा आइडिया होता है जिसको खुद ही रिजेक्ट भी कर देते हैं अपने माइंड में आने कर। अच्छा जी, फिर क्या होता है कि बहुत सारे ओकेजन्स पर उनके जो बड़े भाई हैं वो उनको डांटते हैं, स्कॉल्ड करते हैं और फिर अपना जो टेम्पर होता है उसको लूज भी कर देते हैं। तो यही कहते हैं कि अब तो मतलब कुछ टाइम रह गया मेरे आपके लेवल पर आने पर, तो यकीनन अब आप मुझे कुछ भी नहीं कह सकते। तो अगेन वो अपनी एक्टिविटीज जो होती हैं यानी कि पतंग वगैरह वगैरह उड़ाना, उसी में वो अपने आप को दोबारा एंगेज कर लेता है। तो एक दिन क्या होता है कि वो हॉस्टल से दूर भाग रहे होते हैं। किसके पीछे भाग रहे होते हैं? पतंग के पीछे भाग रहे होते हैं कि वो उनकी जो फ्लाई काइट हो, मतलब जो काइट को फ्लाई कर रहे होते हैं उसके पीछे भाग रहे होते हैं कि कोई और जो है। ये बात जो है दरअसल बॉयज जो बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि उन्हीं से इंटरलिंक कर रहा है बॉयज से कि अगर कोई पतंग जैसे कि फॉर एग्जांपल कट रही होती है या उसके स्ट्रिंग्स वगैरह कट रहे हैं तो फौरन उसके पीछे भागते हैं, जी पतंग हमने लेनी है। सो सेम यहीं पे वो सिनेरियो पैराग्राफ में स्टूडेंट्स बताया है कि वो उस पतंग के पीछे भाग रहे होते हैं। तो एकदम वो अपने भाई से जाकर टकराते हैं, किसी से टकराते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो उनका भाई है जो कि मार्केट से वापस आ रहा होता है। तो वो उनका हाथ पकड़ता है और उनको बहुत गुस्से से कहता है कि आपको शर्म नहीं आ रही, आप इन सब चीजों के पीछे भाग रहे हो, 5 रुपए की पतंग के पीछे भाग रहे हो। क्या आप भूल गए हो कि अब आप यानी कि अब आपका जो ग्रेड है वो लो नहीं रहा है, बल्कि अब आप मजीद जब आप आगे आ रहे हो
जब आप मूव करते हो फ्रॉम वन ग्रेड टू नेक्स्ट ग्रेड, तो यकीनन आपका जो लेवल होता है, एजुकेशन लेवल, वो इंक्रीज हो रहा होता है। तो उसके लिए आपको डबल मेहनत करनी होती है। जैसे कि स्टूडेंट्स, अभी आप लोग 6 क्लास से 7 में आए हो, ठीक है, आपका लेवल तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन आपका जो एजुकेशन का जो बर्डन है वो भी इंक्रीज हुआ है साथ साथ। तो उनका जो भाई, वो इनडायरेक्टली उन्हें यही समझाना चाह रहा होता है कि आप आगे तो बढ़ रहे हो, आप बड़े हो रहे हो, आप हाई ग्रेड में आ रहे हो, तो यकीनन आपका जो एजुकेशन का जो बर्डन है या एजुकेशन जो वो आपकी टफ होने वाली है, सो यू हैव टू मोर फोकस ऑन इट। अच्छा जी, तो छोटा भाई जो होता है वो यही कहता है कि तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, अब मतलब तुम्हारे और मेरे दरमियान सिर्फ 1 ग्रेड का फर्क रह गया है। सो इससे आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप लेकिन ये याद रखना कि आपका और मेरा जो एज डिफरेंस है 5 ईयर्स का, यानी कि मैं आपसे 5 साल बड़ा हूँ, ठीक है। तो आप चाहे जितना एमए या पीएचडी क्यों ना कर लो, लेकिन आपका एक्सपीरियंस जो है वो मुझसे कम ही होगा। मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है बिकॉज आई एम ओल्डर देन यू, ठीक है। अच्छा जी, फिर वो ये बताते हैं कि चाहे तुम जितनी किताबें पढ़ लो, जैसे कि हमारी मदर जो हैं उन्होंने कभी कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो कभी स्कूल गई नहीं, लेकिन इसी तरीके से हमारे जो फादर है उन्होंने 5th क्लास के बाद नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर हम ये देखें, उनका विजडम देखें तो वो ज्यादा है, उनके पास माना पढ़ाई नहीं, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जब आप, यानी कि आप ये मत सोचो कि अगर आपको कोई बड़ा बहन भाई है या अगर वो कभी फेल हो रहा है और आप उसके लेवल तक पहुंच जाते हो कि जी आप उनके इक्वल हो गए। नहीं, आप उनके इक्वल नहीं होते, आपका लेवल में भी सेम हो जाए, लेकिन आपका एक्सपीरियंस जो वो सेम नहीं होता है। तो यहाँ पर वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो, इसी तरीके से हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, अगर वो नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है, और वो आपको कोई बात समझा रहे हैं और हम उन्हें ये कहकर अवॉइड कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, आपको क्या पता जी, आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मुझे देखिए मैं तो इतना पढ़ चुका हूँ, मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ, मैं आपको जो बता रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। नहीं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो डेफिनेटली हमें सही बात बता रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें उन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर वो यही बात बता रहे हैं कि चाहे आप जितने ही बड़े हो जाओ, लेकिन आपका एक्सपीरियंस मुझसे कम ही रहेगा। फिर क्या होता है, वो अपने ब्रदर को यही समझाते हैं कि तुम जो अपना ट्रैक है उसको चेंज करो, बहुत अच्छा पढ़ो, इसी स्पीड में पढ़ते रहो, ठीक है, लेकिन साथ साथ अगर खेल कूद रहे हो तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी अपनी एजुकेशन को दो, ठीक है। अब ये जो उनकी नई अप्रोच जो होती है, जो उनके ब्रदर, उनके एल्डर ब्रदर उन्हें समझाते हैं कि एक्सपीरियंस जो है वो ज्यादा मैटर करता है, तो इस बात को, ये बात जो है छोटे भाई के दिल में जाकर लगती है एंड वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाते हैं, गिल्टी फील करते हैं कि मैंने अपने बड़े भाई के बारे में क्या क्या सोचा, वो जो भी कह रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो अपने भाई के गले लग जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे माफ कर दो, मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा। अच्छा जी, फिर क्या होता है कि एकदम जो है वो स्ट्रिंग जो होता है, जिसे आप लोग बॉयज अपनी लैंग्वेज में शायद मांझा कहते हो, ठीक है, वो जो है एकदम पतंग जो नीचे कट कर आ रही होती है, जिसके पीछे बहुत सारे एक बॉयज का जो क्राउड होता है वो उसे लेने के लिए आ रहा होता है। अच्छा जी, अब जो नरेटर हैं, क्योंकि छोटे भाई हैं नरेटर इस स्टोरी के, जो नरेट कर रहे हैं, तो वो अपने बड़े भाई के बारे में बताते हैं कि उनके बड़े भाई का जो हाइट है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो उस स्ट्रिंग को फौरन पकड़ लेते हैं, ठीक है, और वो हॉस्टल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और छोटा भाई जो है वो अपने बड़े भाई को फॉलो करना शुरू कर देता है। सो स्टूडेंट्स, हमें इस चैप्टर से ये लेसन मिलता है कि आपके जो बड़े सिबलिंग्स होते हैं, एल्डर ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, या आपके जो पेरेंट्स होते हैं, या आपसे जो बड़े होते हैं एज में, ठीक है, वो आपको जो चीज समझा रहे होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पर समझा रहे होते हैं। तो हमेशा हमें उनकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। ये नहीं कि जी मैं बड़ी क्लास में आ गई हूँ तो मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, या मेरी बातें जो बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल एक्यूरेट बात करूँ, नहीं, बल्कि आपके जो बड़े होते हैं उनका एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा होता है, ठीक है, तो हमें हमेशा उनकी बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए। तो ये जो लेसन था वो उसी पर पेश कर रहा है कि एट दी एंड छोटे भाई, जो कि बड़े भाई की स्टार्टिंग में काफी उनके बारे में कुछ कह रहे थे कि पढ़ते ही रहते हैं, ये कभी खेलकूद में दिलचस्पी नहीं लेते, एट दी एंड उन्हें भी वही सब कुछ करना पड़ता है जो उनके भाई ने स्टार्टिंग में समझा रहे होते हैं। ये लेसन जो है वो एक ट्रांसलेशन की गई है, डेविड रूबिन का ये पेपर था चैप्टर, ठीक है, जिसको प्रेमचंद ने ट्रांसलेट किया है। अच्छा जी, अब ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है अबाउट द ऑथर, नॉट द ऑथर, जिन्होंने करा है प्रेमचंद, उनके बारे में है। बर्थ ईयर इनका 1880 है, डेथ ईयर इनका 1936 है।
whose real name was Dhanpat Rai, was born in the village of Lamahi, close to Banaras. His father was a postmaster. When he was 16, he gave up his studies to teach in a government school. He studied privately and passed his intermediate and BA examinations. After his first book was banned by the British government, he began to write under the pen name Premchand. He was not only a brilliant storyteller but a social reformer too. Although Premchand wrote in Hindi and Urdu, his writings have been translated into many languages. He is regarded as one of the great figures of modern Hindi literature. His short stories and novels dealing with the lives of everyday heroes have become classics. अच्छा जी, प्रेमचंद ने जो है चैप्टर लिखा है जिनका रियल नेम बताया गया धनपत राय, जो कि बनारस के थे। ठीक है, बनारस के करीब एक जगह थी, गांव लमाही, जहां पर वो रहते थे। इनके फादर एक पोस्ट मास्टर थे। ठीक है, जब ये 16 इयर्स के हुए तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और ये गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लग गए। लेकिन प्राइवेटली इन्होंने अपने इंटरमीडिएट और बीए एग्जाम्स दिए। उसके बाद इनकी फर्स्ट बुक को जो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। फिर इन्होंने अंडर द पेन नेम यानी कि दूसरे नाम से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया प्रेमचंद। ये बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टोरी टेलर के साथ साथ एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा सोशल रहते थे। प्रेमचंद ने उर्दू और हिंदी में राइटिंग्स की हैं। इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन भी की है। ये एक हिंदी लिटरेचर में एक वेल नॉन के नाम से यानी कि बहुत मशहूर हैं ये हिंदी लिटरेचर में। इनकी शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स वगैरह जो हैं वो हमारी जो एवरीडे की लाइफ है उसमें जो हीरोज होते हैं उनसे काफी मिलते जुलते हैं। सो यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है एंड। ठीक है, नाउ कम टू द रिटन वर्क। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज ए में क्वेश्चन 1 है, व्हाट एडिफाइस इज मेंशन्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ। आंसर। क्वेश्चन 2, इन व्हाट वेज वाज द नरेटर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर। आंसर। कम टू द क्वेश्चन 3, what comments did the big brother have to make on the following English and history, algebra and geometry pride the age difference between two of them? ये आंसर है। ठीक है, A B C D करके आपको आंसर जो है वो इसका दिया गया है। ए बी आपके पास बैक पर थे, ये सी डी का आंसर है। ठीक है, देन क्वेश्चन 4 जो है आपके पास, व्हाट लेसन अबाउट हिज पेरेंट्स डिड द बिग ब्रदर टीच द यंगर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट वे डज द स्टोरी एंड ऑन एन ऑप्टिमिस्टिक नोट। आंसर। आफ्टर दैट आपके पास इस एक्सरसाइज ए का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, डू यू थिंक द बिग ब्रदर यूज्ड द राइट अप्रोच टू टीच हिज ब्रदर a lesson, give reasons for your answer। आंसर है यहाँ पर। देन आपके पास एक्सरसाइज बी है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट RTC। I tried very hard to make some sense out of this but I didn't succeed and I didn't dare ask him। A आंसर। उसके बाद आपके पास बी का आंसर है और सी का आंसर है। RTC आपके पास ए की है इसलिए आप इसमें ABC तीनों करोगे। देन आपके पास एक्सरसाइज सी आप स्टूडेंट्स करोगे 1, जिसके अंदर वर्ड्स एंड मीनिंग है, आपने कंप्लीट करना है। पूरी एक्सरसाइज आपको आंसर के साथ दी जा रही है। ठीक है, ये आप कॉपी करोगे। एक्सरसाइज सी का 2 भी आप करोगे, यूज दिस एक्सप्रेशंस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। ठीक है, ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनके मीनिंग लिखे गए हैं, जिनको सेंटेंसेस में यूज किया गया है। देन आपके पास है कुछ वर्ड्स जिसके आप सेंटेंस बनाओगे, जो कि 4 ही वर्ड्स हैं। एंड वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, कि आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में माय बिग ब्रदर में जितने भी वर्ड्स मीनिंग है वो आप अपनी एक्सरसाइज नोटबुक में लिखोगे, क्योंकि आपकी जो कॉपीज चेकिंग के लिए आ रही है उसमें कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो लिख नहीं रहे हैं। सो आई एम रिपीटिंग कि इस चैप्टर में आपने वर्ड्स मीनिंग भी लिखने हैं। ठीक है, हर चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग ऑलरेडी आपको पता होगा कि लिखते हैं हम, तो डेफिनेटली आप इधर भी वर्ड्स मीनिंग लिखोगे। एक्सरसाइज ए में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एक्सरसाइज बी आपकी RTC है, एक्सरसाइज सी आप 1 और 2 करोगे और देन आपके पास वर्ड्स सेंटेंसेस आ जाते हैं। सारा काम आपको दिया जाएगा। सो काइंडली कंप्लीट इट। थैंक यू।